Welcome to Shikshaism. Today we'll discuss the important topic of chapter number 3 metals and non-metals NCERT syllabus standard 10. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं. First question in our today's list is physical properties of non-metallic elements. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट डिस्कस करने के साथ साथ हम मेटालिक एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते जाएंगे. We have a question called give physical properties or physical common properties of non-metallic element, giving example of it. Generally, in comparison to metals, non-metals are less in number. हम जानते हैं periodic classification में आपने डिस्कस स्टडी किया होगा कि periodic table के ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो मेटालिक है and non-metallic elements are very less in numbers compared to the metallic elements. The example of non-metallic elements are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. ये कुछ important non-metallic elements हैं. Now metals are either solid or gaseous except मतलब non-metals जो है now नहीं non-metals. The non-metals are either solid or a gaseous state except bromine which is a liquid state. It is the only non-metallic element which is present in the liquid state. Important objective. Which non-metallic element is present in a liquid state? It's a bromine only. Otherwise, non-metallic elements are either in a solid or a gaseous state. It can be explained by following activity whether non-metallic element possesses physical properties same as metals or not. कुछ activity perform करेंगे और हम comparison लेंगे between the physical properties of metals and non-metals. First of all, we have to collect some non-metallic elements like carbon, sulfur, iodine, etc., right? And then you have to following the detail tested with the elements. कौन कौन से पैरामीटर्स पर इनको चेक करने वाले हैं, उनकी सरफेस को चेक करेंगे whether they are having lustrous surface or not, because metals are having lustrous surface. मेटल की सरफेस हमेशा lustrous होती है, तो हम चेक करेंगे कि मेटालिक एलिमेंट्स की सरफेस lustrous है या नहीं है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की सरफेस lustrous है या नहीं. नंबर 2, हार्डनेस. जनरली मेटालिक एलिमेंट्स आर हार्ड. जनरली मेटालिक एलिमेंट्स जो है वो हार्ड होते हैं, तो क्या नॉन मेटालिक एलिमेंट्स उनके जैसी ही हार्डनेस पोजेस करते हैं? दैट वी आल्सो डिस्कस. मैलेबिलिटी का मतलब है जिसको हैमरिंग करने के बाद उसमें से थीन शीट्स बनाई जा सकती है. थीन शीट्स जैसे कि आप जानते हो कि फॉइल आती है, गोल्ड फॉइल या सिल्वर फॉइल. ये फॉइल कैसे बनती है? गोल्ड या सिल्वर को हैमर करके उनमें से थीन शीट्स बनाए जाते हैं. The property of metal is called malleability. ये मेटल की malleability property है. The next property is called ductility. Metals are ductile also. Ductile मतलब उनमें से वायर्स ड्रॉ आउट किए जा सकते हैं, वायर खींचे जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं. मेटालिक एलिमेंट्स के वायर्स हम जानते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह के वायर्स होते हैं. सबसे हाईएस्ट जो डक्टिलिटी है वो गोल्ड की होती है. 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर ड्रॉ किया जा सकता है. कंडक्शन ऑफ हीट. Metals are generally good conductor of heat and they are also good conductor of electricity. Metals जो है वो heat और electricity को अच्छे तरीके से conduct करती है. क्या non metallic elements heat और electricity conduct करते हैं? That we will discuss. And when metals are colliding with the other metals or other substances, they produces a rattling sound. एक rattling sound आती है जिसको sonorous sound कह सकते हैं. तो metals are producing sonorous sound. Whether the non-metals are producing sonorous sound or not, that we will discuss or that we will observe by putting some activities. एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं जिसमें हमने कार्बन, सल्फर और आयोडीन को कंपेयर करना है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द मेटल. मेटल के साथ क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी कोरिलेट करती है या नहीं. तो हम यहाँ पर एक्टिविटी के तौर पर जो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन यहाँ पर लेंगे. कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, उनके सिंबल CS और O. टाइप ऑफ सरफेस. क्या कार्बन की सरफेस लस्टरस होती है? हाँ, मैंने देखा है कि ग्रेफाइट possesses lustrous surface. Generally non metals are having non lustrous surface. नॉन मेटल की सरफेस लस्टरस होती नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट का सरफेस लस्टरस देखा है. आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटालिक एलिमेंट, जो सरफेस लस्टरस सरफेस पोजेस करता है. हार्डनेस की बात करें तो जनरली मेटालिक एलिमेंट्स possesses greater hardness than that of a non-metallic elements. Non-metallic elements उतने हार्ड होते नहीं है, बट इसमें भी एक्सेप्शनल केस है. डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, वी नो दैट. डायमंड, और वो किसका फॉर्म है? कार्बन का, और वो नॉन-मेटालिक एलिमेंट है.
malleability, ductilities are not the properties for the non-metallic element. Non-metallic element malleable या ductile होती नहीं है. Whether they are conducting electricity, yes, graphite can conduct electricity. Graphite हम जानते हैं it's a good conductor of electricity. क्या उनके अंदर sonority होती है? Sonority मतलब क्या वो sonorous sound produce कर सकते हैं? नहीं. Generally, non-metals are not having a sonorous sound. लेकिन जो मैंने एक्सेप्शनल केसेस देखा है उसके अलावा मेटल्स की कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पोजेस करती है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. लेट्स लिस्ट आउट सम प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी एक्टिविटी परफॉर्म करी ही कि भाई कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह को कंपेयर करते हैं और उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आता है. नंबर 1, non-metals are not lustrous. Exceptional case, I already mentioned iodine. Iodine का surface lustrous होता है. Being the non-metallic element, iodine possesses a lustrous surface. Non-metals are soft and brittle. Non-metals जो है वो soft होती है, brittle होती है, जबकि metals जो है वो hard होती है. They are non-malleable, non-ductile. वो malleable भी नहीं है, ductile भी नहीं है, and they cannot conduct electricity. But we have exception in form of graphite. Conclusion. What is the conclusion? It can be concluded from the observation of given activity that elements cannot be classified only the basis of their physical properties. क्योंकि हमने देखा कुछ exceptional cases है. Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are not a good conductor of heat and electricity, but still graphite can conduct electricity. सरफेस देखा तो हमने देखा कि मेटल सरफेस जो है लस्टरस होती है, नॉन मेटल की सरफेस नॉन लस्टरस होती है, लेकिन आयोडीन एज अ लस्टरस सरफेस. ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि बाय द मींस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली एलिमेंट्स को ठीक तरीके से या कंप्लीटली क्लासिफाई किया जा सकता नहीं है बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल केसेस आर प्रेजेंट. Many exceptions are there. So thus on the basis of activity, general physical properties, non-metals are given as under. हम एक्टिविटी के बेस पर जो प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज वो यहाँ पर दी है, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन खाली फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं है. लेट्स लिस्ट सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज possessed by the non-metallic element. All metals except mercury exist as a solid at room temperature. We know that metals are having light or high melting point. Gallium and cesium, they are having very low melting point. These two metals will melt if you kept them in your palm. पहले यहाँ पर मेटल के एक्सेप्शन मतलब मेटल का प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि भाई मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. लेकिन यहाँ पर मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया गया. लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसे एलिमेंट है, ये मेटालिक एलिमेंट है जो लो मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करता है. इवन इन योर पाम रूम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाता है. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस सरफेस पोजेस करता है. कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है इन अ डिफरेंट फॉर्म. मेटालिक जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन एटसेट्रा. आप जानते हैं कि डायमंड जो है और ग्रेफाइट जो है वो दोनों कार्बन के ही एलोट्रोप है, लेकिन डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और जो ग्रेफाइट है वो ब्रिटल होता है. डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. एंड अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो सॉफ्ट होती है. जनरली हम जानते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, बट हियर वी हैव सम अल्कली मेटल्स व्हिच आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द नाइफ. बाकी कॉपर या आयरन को आप नाइफ से कट कर सकते नहीं है. तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है ये 4 पॉइंट में डिस्कस किए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर लिस्ट व्हिच इज describe the various steps included in extraction of metal from its ore. मेटल को उनकी ओर में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो डिस्क्राइब करने होते हैं. Which steps are involved for the extraction of metal from its ore? We have certain steps to be followed for extraction of metal from its ore. Number 1, extraction of metal from its ore can be explained as follow. Generally, some metals are found in earth crust in free state. Earth crust जो है earth is a treasure of element. Element का treasure है. Earth crust में से बहुत सारे elements available होते हैं. ये elements either in free state or in a compounded form available होते हैं.
Generally, some metals are found in earth crust in free state, while some metals are found in a compounded form. The metals at bottom of the activity series or reactivity series, at least reactive, एक reactivity series दी गई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम, कॉपर, आर्जेंटम एंड ऑरम। जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में, वो लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स है, और जो भी लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, दे आर अवेलेबल इन अ फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर या प्लेटिनम जो है, दे आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, व्हिच एलिमेंट्स आर अवेलेबल फ्री, फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, इन अ फ्री स्टेट इन अर्थ, सो दे आर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। कॉपर और सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल है, सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म्स, कॉपर सल्फाइड CuS, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में या सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में वो अवेलेबल रहते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन अ फ्री स्टेट। ये कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो कभी भी फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हमेशा कंपाउंडेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। The metals in the middle of the reactivity series, जो मिडल में है ये वाले हमारे, जिंक, आयरन, प्लम्बम, कॉपर एटसेट्रा, they are moderately reactive, मतलब वो हमेशा अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। They are available in form of sulfides, oxides and carbonates। यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी जो है, ये रिएक्टिविटी को अरेंज किया है विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स कितने इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके बेसिस पर ये रिएक्टिविटी जो है वो अरेंज की गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और अबंडेंसी भी अर्थ में उसकी ज्यादा है। तो ये इनिशियल फेज है जहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हाउ और व्हिच आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनका जो इंट्रोडक्शन है ये क्वेश्चन का, वो इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया है कि भाई अर्थ क्रस्ट में से जो अवेलेबल एलिमेंट्स है उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, दोज व्हिच आर लीस्ट रिएक्टिव, दोज व्हिच आर मोस्ट रिएक्टिव, एंड इन द मिडल वी हैव मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जनरली फ्री स्टेट में अवेलेबल है। फ्री स्टेट में इसलिए है कि वो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते नहीं है। जो मोस्ट रिएक्टिव है वो हमेशा कंपाउंडेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये जो मिडल में है वो मॉडरेटली रिएक्टिविटी शो करते हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी। ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव सब्सटेंसेस है वो जनरली अवेलेबल होते हैं इन देयर ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स फॉर्म्स, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म। अब ये तीन कैटेगरी वाले एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए अलग-अलग मेथड्स एम्प्लॉय होती है। लेट्स सी व्हिच आर द मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द एलिमेंट्स जो हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए हैं ये एलिमेंट्स को। नंबर 1, लो रिएक्टिविटी। कौन से एलिमेंट लो रिएक्टिविटी पोजेस करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा। मेटल्स फॉर्म मॉडरेटली रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी, आयरन, जिंक, कॉपर एटसेट्रा, एंड मोस्ट रिएक्टिविटी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये सभी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मोड्स या डिफरेंट स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। डिफरेंट टेक्निक्स आर to be used for obtaining the metals falling in each category। हर एक कैटेगरी के एलिमेंट्स के लिए अलग-अलग मेथड एम्प्लॉय करनी है, अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको। The several steps are involved in extraction of pure metal from ores are summarized below। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है उनको समराइज किया है, कैसे ओर से अलग-अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि उसमें से हो सके उतनी इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाए बाय फिजिकल मींस, फिजिकल मेथड्स के थ्रू, केमिकल रिएक्टिविटी नहीं, फिजिकल मेथड्स के थ्रू मैक्सिमम इंप्योरिटीज को रिमूव करने की जो मेथड्स होती है उनको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आफ्टर ओर गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है उनको इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा
जो ओर है वो मॉल्टन ओर को इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद लास्ट स्टेप में उनका प्योरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस इज द मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्योरीफाई किया जा सकता है। जो मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, दोज मेटल विच आर मीडियम रिएक्टिव और जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, दिस मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स जो है उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये जो ओर होती है वो या तो कार्बोनेट फॉर्म में होती है या सल्फाइड फॉर्म में होती है। इफ दिस ओर इज प्रेजेंट इन द कार्बोनेट फॉर्म, वी हैव टू कैल्सिनेट देम। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब उसमें से कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बोनेट ओर में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा, दिस कार्बोनेट ओर विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑक्साइड फॉर्म में। सल्फाइड ओर अगर होगी, जो मीडियम रिएक्टिविटी पोजेस करने वाले एलिमेंट्स की सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर को रोस्ट किया जाएगा। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फाइड ओर में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी and sulfide ores are also converted into the oxide। जैसे ही मेटालिक ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत ही उनका क्या कर देना है? रिडक्शन। ऑक्साइड का रिडक्शन करते ही मेटल जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देती है और बाद में वो मेटल को प्योरीफाई कर दिया जाता है। तो ये जो थी, ये मेटल ऐसी है जो मीडियम रिएक्टिविटी शो करती है, लाइक जिंक, Fe, कॉपर एटसेट्रा। दोस मेटल विच आर वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही लो रिएक्टिविटी, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ज्यादातर ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। एजीएस, हॉर्न सिल्वर, जिसको सॉरी हॉर्न सिल्वर, एजीएस, सिल्वर ग्लास, एजीसीएल वगैरह, ये सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनको रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग से सल्फर को रिमूव कर दिया जाएगा। देन रोस्टिंग के बाद ये जो मेटल होती है, ये मेटल का रिफाइनिंग कर दिया जाता है और ये तरीके से जो लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल्स है उनका प्योरिफिकेशन या उनका एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये ऐसे कुछ स्टेप्स है जो इन्वॉल्व है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगेन मेटल्स को क्लासिफाई किया जाता है इन 3 कैटेगरीज। अर्थ क्रस्ट में से जो अवेलेबल मेटल्स हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रोलिसिस से प्योरीफाई किया जाता है। जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जनरली नेटिव स्टेट में ही होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये सल्फाइड फॉर्म ऑफ ओर पोजेस करते हैं और सल्फाइड में से सल्फर को रिमूव करना है, सल्फाइड ओर में से सल्फर को रिमूव करना हो तो उसको रोस्ट करना पड़ता है, रोस्टिंग। मेन बात जो है वो पूरी जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जाती है, ये जनरली जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा है। मॉडरेट रिएक्टिविटी मतलब जिंक है, आयरन है, प्लम्बम है। ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके ओर्स जो है वो जनरली 2 फॉर्म में होते हैं, आइदर दे आर प्रेजेंट इन अ कार्बोनेट फॉर्म और अ सल्फाइड फॉर्म। कार्बोनेट ओर को पहले कैल्सिनेट किया जाएगा। कैल्सिनेशन मींस हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट ओर में से CO2 का रिमूवल होगा और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर ये मेटल सल्फाइड ओर के प्रेजेंस में, मतलब सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सल्फाइड ओर को रोस्ट किया जाएगा। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वापस वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगी। एंड आफ्टरवर्ड्स दे गेट्स रिड्यूस्ड बाय कार्बन और अदर मींस, उनका रिडक्शन परफॉर्म किया जाएगा और रिडक्शन के बाद उनको प्योरीफाई कर दिया जाता है। एक बार मैं आप लोगों को समझा दूं, जो मॉडरेटली, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट ओर है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 gets heated at very high temperature to produce zinc oxide and carbon dioxide. The removal of carbon dioxide, the process is called calcination. इनको calcination कहते हैं। और ultimately ये मेटल जो कार्बोनेट फॉर्म ऑफ ओर में थी वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड में। In sulfide ore, suppose zinc sulfide is there, ZnS, zinc sulfide, it is heated in presence of oxygen. In roasting, oxygen is there. In calcination, no oxygen is required. तो यहाँ पर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बना देगा जिंक ऑक्साइड। अल्टीमेटली दोनों ही रीजन, मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का एक ही पर्पस होता है
कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर देना इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड मेटल्स। अब ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गई, सपोज जिंक ऑक्साइड, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कर दो, कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और ये जिंक फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जिंक जो है अभी भी इम्प्योर है, कौन सी फॉर्म में है, इम्प्योर जिंक है। और ये जिंक का प्योरिफिकेशन, ये जो मैंने लिखा है ये रिडक्शन प्रोसेस है, और बाद में इम्प्योर जिंक को प्योरीफाई किया जाता है और इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अल्टीमेटली ये प्योरिफिकेशन मेथड्स है, ये है स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व इन अ मेटलर्जिकल प्रोसेस। हाउ ओर्स जो है उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, उनके बाद उनका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन परफॉर्म होगा, या उनमें से ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में रिडक्शन होगा, और लास्ट में प्योरिफिकेशन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एक छोटा सा सबसे पहले होती है ओर को की जाती है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी अलग अलग मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन थ्रू फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा मेथड्स आर एम्प्लॉयड। कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये जो ओर होती है, ये कार्बोनेट्स या सल्फाइड फॉर्म ऑफ ओर्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनेट्स और अगर होंगे तो उनको किया जाएगा कैल्सिनेट और कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर्स होंगे तो उनको किया जाएगा रोस्टिंग। ये दोनों ही प्रोसेस के थ्रू और जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड में, किसमें, ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द इम्प्योर मेटल बाय रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो, रिडक्शन प्रोसेस। इम्प्योर मेटल जो है उसका बाद में क्या हो जाता है, प्योरिफिकेशन। सो ये पूरा फ्लो चार्ट है कि भाई कैसे मेटल्स जो है उनको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, उनका रिफाइनिंग कैसे होता है। इट्स अ सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग।